اچھا بہت ساری کلیریفیکیشنز نا سم ٹائمز بلکہ تقریباً ہر روز ہمیں ملکی سیاست کے اندر بھی چاہیے ہوتی ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس لیتے ہیں اپنے اس شو کے اندر، ان سے ڈائریکٹ جو ہے نا سوال کر کے نا ان کے جوابات جان لیتے ہیں. تو اس وقت سچویشن یہ ہے ملکی سیاست کے اندر کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سخت بیان بازی کا تبادلہ جاری ہے، جو کہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وزیر اعظم یہ کہنے لگی یہ کب نہیں ہوتا. وزیر اعظم کے مشیر ہے رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بار بار مذاکرات کا کہا، لیکن سینئر لیڈرشپ نے جواب دیا کہ انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی بھی بانی متحدہ والے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی سیاست نہیں محاذ آرائی کر رہے ہیں. اور اب کچھ ایسی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے کسی دوسرے صوبے منتقل کیا جا سکتا ہے، وہاں کی جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے. اس کی اب ریزنز کیا ہیں، کیوں منتقلی ہوگی، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، ان کا بڑا رول رہا ہے خاص طور پر مذاکرات کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو حزب اختلاف حالات کو اس نہج پر لے گئی، یا اب ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے جہاں سے واپسی شاید جو ہے وہ ناممکن ہے. جس فوج نے بھارت سے جنگ جیتی ان کے خلاف زبان استعمال کی گئی، ایاز صادق صاحب یہ فرما رہے ہیں. اور سیاسی منظرنامے پر مائنس کی تکرار بھی چل رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ مائنس بانی پی ٹی آئی بھی ہو سکتا ہے. اگین دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کے بارے میں یہ بات کی گئی ہو. ہم نے نون لیگ کے دور میں بھی، یا جب نون لیگ جو ہے نا ان کے سینئر لیڈر جو ہے نا ان کو جیل میں رکھا گیا تھا یا ان کو سزا ہوئی تھی، اس وقت بھی ہم نے یہ سنا تھا. ہم نے پیپلز پارٹی والے معاملات میں بھی یہ سنا تھا. اس پر کچھ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے. بہرحال یہ جان لیتے ہیں کہ کچھ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے اختیار ولی خان صاحب، جو نومینیٹڈ ٹو پرائم منسٹر بھی ہیں. ہماری ساری باتیں سن بھی رہے ہیں، ڈیفینیٹلی تیار بھی ہیں ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. اختیار صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے پتہ چلا آپ کی والدہ کے بارے میں، ان کے لیے جو ہے نا بہت سی تعزیت. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور آسانی دے، اور آپ لوگوں کو صبر جو ہے نا وہ بھی عطا کرے. بہت بہت شکریہ اس ٹف ٹائم میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اختیار صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ابھی بات کی جا رہی ہے، کوثر کاظمی صاحب نے غالباً یہ بات کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو شفٹ کیا جا سکتا ہے یہ اڈیالہ سے کسی دوسرے صوبے. اس کے اندر کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی میں یہ ہونے جا رہا ہے؟ اختیار صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ. جی میں سن رہا ہوں. کیا میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کیجئے. تھوڑا سا ان کے فریم اور ان کو شاید آڈیو جانے میں ڈیلے آ رہا ہے، تو ان سے ہم ذرا دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اور پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی بانی پی ٹی آئی کے بارے میں جو خبریں گردش کر رہی ہیں، کیا وہ سچ ہیں، سچائی پر مبنی ہیں، یا پھر یہ صرف افواہیں ہی ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ افواہیں اڑا دی جاتی ہیں جسٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اس پر ریاکشن کس طرح سے آئے گا. انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا اختیار صاحب نے، ان کی طرف چلتا ہے. جی اختیار صاحب آپ سن پا رہے ہیں تو آپ پلیز کنٹینیو کیجئے گا جواب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ. تھینک یو ویری مچ فار یور کنڈولنسز. میری والدہ کی وفات پہ آپ نے تعزیت کی، آپ کا مشکور ہوں. یقیناً ماؤں کا بچھڑنا یہ وہ صدمہ ہے جس کو نہ سہا جا سکتا ہے نہ برداشت کیا جا سکتا ہے. بس اس سے انسان کو گزرنا ہی پڑتا ہے. جن کے وفات ہو گئے اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جنت نصیب کرے. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے، آمین. جہاں تک آپ نے سوال کیا، بانی پی ٹی آئی زندہ ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے، آمین. جہاں تک آپ نے سوال کیا بانی پی ٹی آئی کو کسی دوسری جگہ پر عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کا، تو بات ایسی ہے کہ اڈیالہ روڈ پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی جینے کا حق ہے. ایک طرف ہم صرف بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی بات تو کرتے ہیں، لیکن وہ ہزاروں بہنیں جو اسکول پہنچ نہیں پاتے، اسکول گئے ہوں تو واپس گھر نہیں آ پاتے، ایمبولینسز جو ہے وہ راستے میں سٹک ہو جاتی ہیں، بیمار رک جاتے ہیں. تو ہر ہفتے یہ دھما چوکڑی جو ہے یہ اب ٹالریٹ نہیں کی جا سکتی. تو میرے خیال میں اب یہ پہلے تو یہ چیزیں کبھی آف دا ٹیبل ہی ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ ساری باتیں یہ آن دا ٹیبل ہیں کہ لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اور ان کو جینے کا حق دینے کے لیے میرے خیال میں اب یہ اس پہ جو ہے تو
कभी भी किसी भी वक्त कोई एक्शन लिया जा सकता है कि इमरान खान जो है तो उनको किसी दूसरी जेल में दूसरे शहर में उनको मुंतकिल किया कहाँ का सोचा जा रहा है, ये प्लान किया जा रहा है, कहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है इख्तियार वली साहब? एनीवेयर इन पाकिस्तान, कोई भी जगह हो जो महफूज हो, जहां पर उनकी मुलाकात भी हो, उनके फॉलोअर्स भी आना चाहे तो जरूर आ सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लोगों के दीगर पाकिस्तानियों की जिंदगी में कोई ऐसी कोई खलल भी ना पड़े। तो वो कहीं भी हो सकता है, पाकिस्तान के किसी सूबे में भी हो सकता है, किसी शहर में भी हो सकता है। ठीक है, वैसे तो आप कह रहे हैं कि किसी भी वक्त ये लिया जा सकता है फैसला, लेकिन फिर भी कुछ आपके आइडिया में हो, कोई आइडिया कि कब तक किया जा सकता है ये फैसला किसी दूसरे सूबे में मुंतकिल किया जाए? ये जो इंटरनेट ना लगो रहे, अच्छा दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि आइडिया जो है ना वो फिर ऐसा ही होता है कि वो फिर अनाउंस हो जाता है, मीडिया फिर उसको ऐसे ही लेता है। तो मेरे ख्याल में अभी बात को फिलाल यहीं तक रहने देते हैं ये तो थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा तो कोई हिंट दे के जाएं इख्तियार वली साहब। मेरे ख्याल में नए साल का सूरज जो है तो वो किसी नए जेल में ही जो है तो तुलू होगा। अच्छा अच्छा चलें। अच्छा, ये जो बातें हो रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बानी पीटीआई माइनस होने जा रहे हैं, बिल्कुल वो उसी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ बानी एमक्यूएम गए थे। इस स्टेटमेंट से आप कितना अग्री करें, बानी पीटीआई माइनस होने जा रहे हैं? देखिए, किसी को माइनस करना जो है पॉलिटिकली ये कोई अच्छी बात भी नहीं होती, ये कोई अच्छा शगुन भी नहीं होता, लेकिन वो उर्दू का एक बड़ा अच्छा शेर है, उसका मिसरा मुझे याद आ रहा है कि उसे मैं कैसे बचाऊं जो डूबना चाहे। जो खुद ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी माइनस हो, जो खुद ये चाहते हैं कि उनका लीडर माइनस हो, जो खुद ये चाहते हैं कि टकराव हो, लड़ाई हो, इंतशार हो, फसाद हो, तो मुझे ये बताइए, देयर इज अ सर्टेन लिमिट। हर बात की एक हद होती है, एक रेड लाइन होती है। ये तो रेड लाइन को भी उससे भी बहुत दूर निकल चुके हैं। मतलब आईएमएफ को खत लिखना, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के लिए साजिशें करना, जो स्पीकर ने रूलिंग दी थी इनके अदम एतमाद के वक्त, वो आर्टिकल 6 की वो सारी कार्रवाई एक ठीक ठाक केस था, बट वी अवॉइडेड दैट। उसके बाद फिर साइफर लहराना, साइफर गुम जाना, वो भी एक मुकदमा था, हमने अवॉइड किया। फिर इन्होंने 9 मई किया, फिर उसके बाद 26 नवंबर किया, और अभी ये जो रिसेंट ट्वीट हुई है, आप अंदाजा करें कि आपकी लड़ाई किसके साथ है? अपने मुल्क के साथ, अपने वतन के साथ, अपनी फौज के साथ, इस मुल्क के शुहदा के साथ, इस मुल्क की तरक्की के साथ, इसकी सालमियत के साथ, इसकी तरक्की और खुशहाली के साथ। तो कि हम ये समझते हैं कि political party should remain like a political party and political leaders should behave, they should learn how to behave like a बिल्कुल आप political ठीक leader। बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर -1 भी कोई नई बात नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, जहाँ तक मुझे याद है, जितनी मेरी उम्र हो गई है, जितने अरसे का मेरा करियर है, बहुत मरतबा हो चुका है, बहुत से लीडर्स के बारे में यही बात की जाती रही। हमें नवाज शरीफ साहब के बारे में भी याद है, उनके बारे में भी इस तरह की एक फ़ज़ा बनाई गई थी कि उनको माइनस किया जाए, कि माइनस नवाज शरीफ होगा तो फिर नून लीग चल सकती है। लेकिन अगेन अब हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको लगता है कि बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर इस तरह का किसी दूसरी सियासी जमात से मुतालबा करना कि भाई -1 होगा तो फिर आपसे बात हो सकती है, आपको लगता है कि ये सियासत के लिए ठीक होता है? देखिए, नवाज शरीफ की जो -1 की बातें थी वो इमरान खान साहब का आइडिया था, वो उनकी विश थी, वो उनकी ख्वाहिश थी। ये इमरान खान साहब को माइनस करने का आइडिया किसका है? मैं बात पूरी करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। जी बताइए। ये फॉर्मूले जो थे ये इमरान खान बनाया करते थे, ये उनके आइडियाज थे। और मैं आपको मजीद बताऊं कि वो आसिफ अली जरदारी को भी माइनस करना चाहते थे, वो मौलाना फजलुर रहमान को भी माइनस करना चाहते थे, वो एमक्यूएम को भी माइनस करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पिच पर अकेले खड़े रहें, वही बॉलर हो, वही बैटर हो, वही
एम्पायर हो वही फील्डर हो, कोई और ना हो। वो अपने लिए एक ऐसा पाकिस्तान और एक ऐसा जमहूरी निजाम चाहते थे, एंड फॉर दैट मैटर उनके बड़े गंदे मरासम पाकिस्तान के टेररिस्ट के साथ बन चुके थे, और इस प्लान को उन्होंने एग्जीक्यूट भी करनी था, लेकिन वो हो नहीं सका, और वो किसी ने होने भी नहीं दिया। अब आज की जो माइनस की बात है, मैं आपको बताऊं कि आप ये जो टेररिज्म की बात जो कर रहे हैं कि उनके मरासिम हो गए, तो आपको लगता है कि बहुत एक्सट्रीम एक तरह का इल्जाम है उनके ऊपर? ये बात तो मैं बहुत पहले फ्लोर ऑफ द हाउस कर चुका हूं कि इमरान खान ने, उसने जो तहरीके तालिबान है उसको अपनी जमात का बाकायदा अस्करी विंग बना लिया था। अच्छा। और उनका टारगेट ये था कि इमरान खान के तमाम दुश्मनों को जो है रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्या बल्कि फील्ड ही रह जाए, और ये अकेले ही रहे। ये तो उनका एक प्लान था। ये तो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में ये बात कर चुका हूँ, और मेरी इस बात को पीटीआई के लोग डिनाई नहीं कर सके। इसके तो नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, जब उन्होंने स्वात और काशगर और वजीरिस्तान के रास्ते टेररिज्म को इम्पोर्ट किया। क्या ये कोई आज की जो माइनस की बात हो रही है, मुकदमा है उनके ऊपर, ये इस इल्जाम या ये केस चल रहा है बानी पीटीआई के ऊपर? अगर उनके इस तरह से मरासिम थे, हमने इसको लेकर गवर्नमेंट लेकर मैं बताता हूँ आपको जी, हमने हद दर्जे तक ये कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मतलब कौमी धारे में उनकी एक जगह अगर बन गई है, उनकी एक फैन फॉलोइंग है, तो अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन जाए। यकीन करें कि कई मौके ऐसे आए कि उन पर आर्टिकल 6 लागू होने लगा था, लेकिन समटाइम्स मियां नवाज शरीफ ने उसको अवॉइड किया, समटाइम्स वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसको अवॉइड किया। 6 तो उस पर लगता है जो गद्दार हो। इख्तियार साहब, अगर एक शख्स गद्दार है और आप कह रहे हैं कि इर्रिफ्यूटेबल उसके खिलाफ एविडेंसेस मौजूद हैं कि दहशतगर्दों या तहरीक तालिबान के साथ भी उनके मरासिम थे, अस्करी विंग वो बनाने लगे थे उसको, तो आपको नहीं लगता कि फिर तो कंटिन्यू करना चाहिए था? बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन, ये तो फिर मेरा भी मुतालबा बन जाता है कि जिसने गद्दारी की है या कोई स्टेट के खिलाफ है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात तो कोई ढकी छुपी नहीं है। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि स्टेट क्या कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही है, इसको लेकर इसको परसू क्यों नहीं कर रही है? यही तो हम समझते हैं कि स्टेट ने हमेशा, आपको एक बात याद होगी ना, आज से कुछ अरसा पहले, आज साल पहले कह लें, 1.5 साल पहले कह लें, हम एक सॉफ्ट स्टेट थे। सॉफ्ट स्टेट क्या होता है कि आप बंदूकें लहराते हुए डी चौक की तरफ आते हैं। सॉफ्ट स्टेट क्या होता है कि आप डी चौक पर आकर वहां पर कब्रें खोद कर बैठ जाते हैं। सॉफ्ट स्टेट क्या होता है कि आप कफन बैठ जाओ, आप पीटीवी में घुस जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहता। आप पार्लियामेंट हाउस में घुस जाओ, आप कब्जे कर लो, आपको कोई कुछ नहीं कहता। ये एक सॉफ्ट स्टेट था। आज हम हार्ड स्टेट बन चुके हैं। वो बातें जो पहले हम कर नहीं सकते थे, आज हम करने लगे हैं। तो आज अगर वो इक़दामात जो पहले हम उठा नहीं सकते थे, आज हम वो उठाने लगे। अच्छा, क्या इक़दामात उठाने लगे हैं? क्योंकि पीटीआई पर पाबंदी की बातें भी हो रही हैं, तो क्या पार्टी ही बैन होने जा रही है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि पार्टी तो बैन नहीं हो सकती, और ये आग अगर पीटीआई की तरफ आ रही है तो फिर आगे भी जाएगी, यहाँ पर सिलसिला रुकेगा नहीं। देखिए, मोर और लेस चीजें जो है ना, पार्टी बैन हो या इमरान खान बैन हो या जो है तो गवर्नर रूल की इम्पोजिशन है, इस सारी चीजों का इकट्ठा जो है जायजा लिया जा रहा है। एंड समथिंग विल हैपन अनयूजुअल, कुछ होगा। ये ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ बात करने की नहीं है। जो पहले इनको सिर्फ डराया जाता था, धमकाया जाता था, या इनको वार्न किया जाता था, वो सारी चीजें जो थी वो समझाने के लिए, बताने के लिए वो वक्त गुजर चुका। इख्तियार साहब, यही तो हम जानना चाह रहे हैं, क्या हो सकता है? ये सरप्राइज सिर्फ पीटीआई के लिए ही होगा, आवाम के लिए भी होगा? थोड़ा सा कुछ तो बताइए।
मेरे ख्याल में जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, सबको पता है क्या होने जा रहा है और डेमोक्रेटिक नहीं है। पर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और उनके अपने एमएनएज ने, मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूँ, उनके अपने एमएनएज ने कहा है कि वी आर नॉट एग्री विद खान्स पॉलिसीज। जो वो पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, हम उसको बेयर नहीं कर सकते। इमरान खान के बयानिए का बोझ उठाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, बिकॉज अब ऐसा लगता है कि या आपको इमरान के साथ चलना होगा या आपको पाकिस्तान के साथ चलना होगा। उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को इम्तिहान में डाल रखा है, तो इसका हल निकाला जाएगा और हल इसका निकल भी जाएगा इंशाल्लाह। चले जी, हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेट्स सी क्या डेवलपमेंट होती है पॉलिटिक्स के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, आपने मुश्किल वक्त के अंदर भी हमें और अपनी सारी राय जो है, जो भी सिचुएशन है उसके बारे में हमारे सवालों के जवाब भी दिए। तो ये सिचुएशन है जनाब, वो कहना है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, तो इंतज़ार किया जाए। बहुत सारे मामलात का जायज़ा लिया जा रहा है, गवर्नर रूल पे भी गौर किया जा रहा है, पीटीआई को बैन करने पे भी गौर किया जा रहा है, फिर बानी की अडियाला जेल से मुंतकिली पर भी गौर किया जा रहा है। अब इनमें से कौन सा फैसला होगा या सारे ही फैसले ये होने जा रहे हैं, ये अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा।